بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر سبزی ہر انسان کے لیے ہر حالت میں فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ بعض سبزیاں مخصوص طبی حالات میں کچھ لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی چند سبزیوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں بعض افراد کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آلو کی۔ آلو دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سبزیوں میں سے ایک ہے۔ اس میں توانائی، پوٹاشیم اور دیگر غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آلو کو بار بار تیل میں تل کر کھایا جائے، جیسے فرنچ فرائز یا چپس کی صورت میں۔ ایسی غذائیں اکثر زیادہ نمک، غیر صحت بخش چکنائی اور اضافی کیلوریز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اگر انہیں روزانہ بہت زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو وقت کے ساتھ وزن بڑھ سکتا ہے، بلڈ پریشر متاثر ہو سکتا ہے اور دل اور خون کی نالیوں کی صحت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ چونکہ ٹانگوں کے پٹھوں کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے اچھی خون کی روانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مجموعی دل کی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو آلو پسند ہیں تو انہیں مکمل طور پر چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ انہیں ابال کر بیک کر کے کھائیں اور ساتھ میں پروٹین اور دوسری سبزیاں بھی شامل کریں تاکہ کھانا زیادہ متوازن ہو۔ اب بات کرتے ہیں ڈبہ بند سبزیوں کی۔ سبزیاں خود فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن بعض ڈبہ بند سبزیوں میں ذائقہ اور حفاظت برقرار رکھنے کے لیے کافی زیادہ نمک شامل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ پہلے ہی ہائی بلڈ پریشر، دل یا گردوں کے کسی مسئلے کا شکار ہیں تو زیادہ نمک جسم میں پانی روکنے اور سوجن کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح اچار والی سبزیوں میں بھی نمک کی مقدار کافی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ ذائقے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن انہیں روزمرہ کی بڑی مقدار میں کھانا مناسب نہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں نمک کم استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہو۔ اب بات کرتے ہیں پالک کی، جو بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو سکتی ہے۔ پالک بے شمار وٹامنز، آئرن، فولیٹ اور دیگر غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک بہترین سبزی ہے۔ تاہم پالک میں آکسیلیٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو مخصوص قسم کی گردے کی پتھری بننے کا خطرہ ہوتا ہے، ان کے ڈاکٹر بعض اوقات زیادہ آکسیلیٹس والی غذاؤں کی مقدار محدود کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو گردوں کی پتھری کا مسئلہ رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر پالک کی مناسب مقدار طے کریں۔ لیکن اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تو پالک ایک صحت مند غذا کا حصہ بن سکتی ہے۔ چقندر بھی ایک ایسی سبزی ہے جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے کیونکہ اس میں قدرتی نائٹریٹس ہوتے ہیں جو جسم میں خون کی روانی کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ لیکن چقندر میں بھی آکسیلیٹس موجود ہوتے ہیں، اس لیے جن افراد کو مخصوص قسم کی گردے کی پتھری کا خطرہ ہو انہیں اس کے استعمال کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ باقی زیادہ تر لوگ اسے متوازن مقدار میں آرام سے کھا سکتے ہیں۔ مکئی بھی ایک عام سبزی ہے، لیکن یہاں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ تازہ ابلی ہوئی مکئی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے، جبکہ مکئی سے بنی ہوئی بہت سی پیک شدہ اسنیکس جیسے کارن چپس اکثر زیادہ نمک، غیر صحت بخش چکنائی اور ریفائنڈ اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر ایسی غذائیں روزانہ کھائی جائیں تو وہ مجموعی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں، جو بالواسطہ طور پر ٹانگوں کی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی ایک سبزی اکیلے آپ کی ٹانگوں کو کمزور یا مضبوط نہیں بناتی۔ صحت مند ٹانگوں کے لیے متوازن غذا، مناسب پروٹین، باقاعدہ چہل قدمی، ہلکی پھلکی ورزش، مناسب نیند، پانی کی صحیح مقدار، اور اگر موجود ہوں تو ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر جیسے امراض کا بہتر کنٹرول، یہ سب ایک ساتھ مل کر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں مسلسل درد رہتا ہے، اچانک کمزوری محسوس ہوتی ہے، ایک ٹانگ میں غیر معمولی سوجن آ جاتی ہے یا چلتے وقت شدید درد ہونے لگتا ہے تو صرف خوراک تبدیل کرنا کافی نہیں۔ ایسی صورت میں جلد از جلد کسی مستند ڈاکٹر سے معائنہ کروانا ضروری ہے تاکہ اصل وجہ معلوم ہو سکے۔ یاد رکھیں، صحت مند زندگی کا راز کسی ایک غذا کو مکمل طور پر چھوڑنے میں نہیں بلکہ متوازن خوراک، مناسب ورزش اور اچھی روزمرہ عادات اپنانے میں ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں وقت کے ساتھ آپ کی مجموعی صحت اور ٹانگوں کی مضبوطی میں بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے۔ آئیے اب ایک اور سبزی کی بات کرتے ہیں جسے اکثر صحت مند غذا کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے ٹماٹر۔ ٹماٹر میں وٹامن سی، پوٹاشیم اور طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو مجموعی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ٹماٹر کھانے کے بعد تیزابیت، سینے کی جلن محسوس ہوتی ہے۔
अगर बार बार ऐसी तकलीफ हो तो खाने की मिकदार आ वक्त में तब्दीली मुफीद साबित हो सकती है। अगरचे टमाटर बराह रास्त टांगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब हाजमा बार बार खराब रहे तो जिस्म जरूरी ग़िज़ाई अज्जा को मुअस्सिर तरीके से जज्ब नहीं कर पाता और वक्त के साथ इसका असर तवानाई और पठों की कारकर्दगी पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं बैंगन की। बैंगन फाइबर, विटामिन्स और कई मुफीद एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा जरिया है, लेकिन बाज लोगों को बैंगन खाने के बाद पेट में गैस या भारीपन महसूस होता है। अगरचे इस बारे में मजबूत साइंसी सबूत मौजूद नहीं कि बैंगन आम लोगों में टांगों की कमजोरी का बाइस बनता है, लेकिन अगर आपको किसी खास ग़िज़ा से बार बार तकलीफ महसूस होती है तो बेहतर है कि अपने डॉक्टर या ग़िज़ाई माहिर से मशवरा करें, बजाय इसके कि खुद से पूरी ग़िज़ा को छोड़ दें। एक और चीज जिस पर तवज्जो देना जरूरी है वो है ज्यादा नमक और मसालों के साथ पकाई जाने वाली सब्जियां। असल मसला अक्सर सब्जी नहीं बल्कि इसे पकाने का तरीका होता है। अगर हर सब्जी में बहुत ज्यादा नमक, तेल या घी इस्तेमाल किया जाए तो इससे ब्लड प्रेशर, वजन और दिल की सेहत मुतासिर हो सकती है। जब दिल और खून की नालियां सेहतमंद न हो तो टांगों तक खून की रवानी भी मुतासिर हो सकती है, जिससे चलने फिरने में थकन या भारीपन महसूस हो सकता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनकी टांगों में रात के वक्त खिंचाव या दर्द होता है। वो फौरन किसी एक सब्जी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, हालांकि हकीकत में इसकी कई वजूहात हो सकती है। मिसाल के तौर पर जिस्म में पानी की कमी, मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी, ज्यादा देर तक बैठे रहना, आबाज दवाओं के मुज़िर असरात भी इसकी वजह बन सकते हैं। इसलिए सिर्फ खुराक को कसूरवार ठहराना दुरुस्त नहीं। ये भी याद रखें कि अगर आप अपनी खुराक से मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां निकालना शुरू कर दें तो इसके नतीजे में जिस्म को जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर कम मिल सकते हैं। फाइबर न सिर्फ हाजमा बेहतर बनाता है बल्कि वजन को मुतवाजिन रखने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और दिल की सेहत को बेहतर रखने में भी मदद देता है। यही तमाम अवामिल बिलवास्ता तौर पर आपकी टांगों की सेहत पर मुस्बत असर डालते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें ज्यादा मजबूत रहें तो सिर्फ इस बात पर तवज्जो न दें कि क्या नहीं खाना, बल्कि इस पर भी गौर करें कि क्या जरूर खाना चाहिए। मिसाल के तौर पर प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे दालें, चने, मछली, अंडे या बगैर चर्बी वाला गोश्त पठों की मजबूती के लिए अहम है। इसी तरह कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों की सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि मैग्नीशियम और पोटाशियम पठों के मामूल के काम में मदद देते हैं। अगर आप सारा दिन बैठकर काम करते हैं तो सिर्फ अच्छी ग़िज़ा काफी नहीं होगी। हर घंटे बाद चंद मिनट पैदल चलना, हल्की स्ट्रेचिंग करना और रोजाना कम अज कम 30 मिनट चहलकदमी करना खून की रवानी को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। बहुत से लोग महंगी सप्लीमेंट्स तलाश करते रहते हैं, लेकिन रोजाना की ये सादा आदतें ज्यादा मुअस्सिर साबित हो सकती है। एक और आम गलती यह है कि लोग पानी कम पीते हैं। जिस्म में पानी की कमी की वजह से बाज अफराद को थकन, पठों में खिंचाव और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पीना भी इतना ही जरूरी है जितना मुतवाजिन ग़िज़ा खाना। अगर आपको ज़ियाबीतस, हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रोल का मसला है तो अपनी खुराक के बारे में डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना बहुत जरूरी है। ये बीमारियां अगर काबू में न रहें तो वक्त के साथ खून की नालियों और असाब को मुतासिर कर सकती हैं, जिसके नतीजे में टांगों में सुन होना, दर्द या कमजोरी जैसी अलामात पैदा हो सकती है। हर इंसान की सेहत, उम्र, बीमारियों और ग़िज़ाई ज़रूरियात मुख्तलिफ होती है। जो चीज़ एक शख्स के लिए महदूद करने की ज़रूरत हो सकती है वो दूसरे शख्स के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज और फ़ायदामंद हो सकती है। दानिशमंदी इसी में है कि अपनी खुराक में तवाज़ुन रखें, रंग बरंगी सब्जियां खाएं, ज्यादा नमक और तली हुई चीज़ों से परहेज करें, रोज़ाना जिस्मानी सरगर्मी जारी रखें और अगर कोई मुस्तकिल अलामत महसूस हो तो खुद इलाज करने के बजाय मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें। यही वो आदतें हैं जो न सिर्फ आपकी टांगों बल्कि आपके पूरे जिस्म को लंबे अरसे तक सेहतमंद रखने में मदद दे सकती है। अब मैं आपको 35 साला आमिर की एक कहानी सुनाता हूँ। आमिर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। इसकी मुलाजमत ऐसी थी कि इसे रोजाना 8 से 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता था। चंद महीनों से वो एक अजीब मसले का सामना कर रहा था। दफ्तर से घर वापस आते ही इसकी टांगें बहुत भारी महसूस होती, सीढ़ियां चढ़ते वक्त जल्दी सांस फूल जाता और कभी कभी पिंडलियों में खिंचाव भी होने लगता। शुरू में आमिर ने सोचा कि शायद ये सिर्फ थकन है। इसने दर्द कम करने वाली जेलें इस्तेमाल की, कभी गर्म पानी से सींक किया और कभी आराम कर लिया, लेकिन मसला खत्म ना हुआ।
वक्त के साथ इसने इंटरनेट पर वीडियोस देखना शुरू कर दी। हर वीडियो में कोई ना कोई खुराक दुश्मन करार दी जा रही थी। किसी ने कहा आलू छोड़ दो, किसी ने कहा टमाटर नुकसान करते हैं और किसी ने पालक को भी मसले की जड़ बता दिया। आमिर घबरा गया। इसने एक एक करके कई सब्जियां खाना तकरीबन बंद कर दें। इसे लगा कि शायद यही इसकी कमजोर टांगों की असल वजह है। चंद हफ्ते गुजर गए, मगर हैरत की बात यह थी कि इसकी टांगों में कोई खास फर्क नहीं आया, बल्कि अब वो पहले से ज्यादा कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगा, क्योंकि इसकी खुराक पहले जैसी मुतवाजिन नहीं रही थी। आखिरकार इसने एक डॉक्टर से मुलाकात की। मुकम्मल मुआयना किया गया, कुछ बुनियादी टेस्ट हुए और इससे इसकी रोजमर्रा जिंदगी के बारे में सवाल किए गए। तब एक दिलचस्प हकीकत सामने आई। आमिर की सबसे बड़ी मुश्किल सब्जियां नहीं थीं। वो रोजाना तकरीबन 10 घंटे मुसलसल बैठा रहता था, पानी बहुत कम पीता था, दोपहर का खाना अक्सर फास्ट फूड होता था और शाम को घर आकर वो सीधा सोफे पर बैठ जाता था। ना बाकायदा वाक, ना वर्जिश, ना मुनासिब नींद। डॉक्टर ने इससे कहा, सिर्फ किसी एक सब्जी को छोड़ देने से आपकी टांगें मजबूत नहीं होंगी। असल मसला आपकी रोजाना की आदतें हैं। आमिर को मशवरा दिया गया कि हर घंटे बाद कम अज कम 5 मिनट के लिए उठकर चले, दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पाए, अपनी प्लेट में मुख्तलिफ रंगों की ताज़ा सब्जियां शामिल रखे, प्रोटीन की मुनासिब मिकदार ले और रोजाना कम अज कम 30 मिनट तेज कदमों से चले। शुरू में इसे लगा कि इतनी छोटी छोटी तब्दीलियों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। सिर्फ 1 महीने बाद इसे महसूस होने लगा कि शाम के वक्त टांगों का भारीपन पहले से कम हो गया है, पिंडलियों में खिंचाव भी कम आने लगा और सीढ़ियां चढ़ते वक्त वो पहले से ज्यादा आसानी महसूस करने लगा। इसने एक और अहम बात सीखी। सेहत सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि आप क्या नहीं खाते, बल्कि इस बात का भी नाम है कि आप क्या खाते हैं, कितना चलते हैं, कितना पानी पीते हैं और अपने जिस्म का कितना ख्याल रखते हैं। आमिर की कहानी हमें ये सिखाती है कि अक्सर हम मसले की असल वजह को छोड़कर सिर्फ एक खुराक को कसूरवार ठहरा देते हैं, जबकि हकीकत में हमारी रोजमर्रा की आदतें ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही होती है। अगर आप भी दिन भर बैठे रहते हैं, पानी कम पीते हैं, अमुतवाजिन ग़िज़ा नहीं लेते, तो सिर्फ एक सब्जी छोड़ देने से शायद वो फायदा ना मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। तो आज की वीडियो से हमने ये सीखा कि हर सब्जी हर इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं होती। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी मजमूई खुराक कैसी है, आपकी रोजमर्रा की आदतें क्या है और क्या आपको पहले से कोई ऐसी तिब्बी हालत तो नहीं जिसमें कुछ ग़िज़ाओं की मिकदार महदूद करने की जरूरत हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें मजबूत रहें, जिस्म में तवानाई बरकरार रहे और आप बढ़ती उम्र में भी आसानी से चल फिर सकें, तो सिर्फ एक खुराक को कसूरवार ठहराने के बजाय मुतवाजिन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, मुनासिब नींद, काफी पानी और डॉक्टर के मशवरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यही छोटी छोटी आदतें वक्त के साथ बड़ा फर्क पैदा करती है।